Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी। और अब हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग। Thanks, Amrish. Yes, friends, let's begin with the headlines first. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex slips 28 points. Nifty closes below 22,940. Major Asian indices close mixed. European indices trade in negative territory. And global crude oil prices register gain. Brent crude trades at $76.42 per barrel. घरेलू शेयर बाजार लगभग स्थिर रहे। सेंसेक्स 28 अंक गिरा। निफ्टी 22,940 अंकों के नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा। यूरोप के शेयर बाजारों में भी गिरावट दिखाई दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $76.42 प्रति बैरल रही। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लगभग स्थिर रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 28 अंकों की गिरावट के साथ 75,939 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंकों की मामूली गिरावट दर्ज करता हुआ 22,933 अंकों पर बंद हुआ। व्यापक बाजार ने सूचकांकों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। All right, let's take a look at the stocks in detail now. Well, the benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 28 points to close at 75,939. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 was marginally down by 12 points to settle at 22,933. The broader market indices at the BSE rebounded and outperformed the benchmark indices. The mid-cap index rose 1.3% and the small-cap index surged over 2.4%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies logged losses. Among the top laggards, TCS shed more than 2.2%. Infosys slipped 2.2% and Hindustan Unilever fell almost 2%. Conversely, among the top gainers, Zomato surged over 4.8%, Larsen & Toubro as well as Axis Bank rose 1.77% each, and ICICI gained 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors ended up. Among the top gainers, industrials advanced almost 2.6%, capital goods gained 2.1% and realty added over 1.6%. Conversely, among the top laggards, focused IT and tech both lost over 1.3% each. Information technology slipped over 1.2% and healthcare fell 0.31%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,810 companies advanced, 1,147 declined and 117
19 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 19 companies hit their 52-week high, while 361 hit their 52-week low. So, Deepshika, a lot of people who've been keeping their fingers crossed. Okay, budget came and went, and Mr. Trump became the president on the 20th of January, and they said, okay, let's see how things will be. How do you see the markets being kind of flat? It is said that it is the nature of the markets to be volatile, but no news is good news. I think everyone and the world over, if you see, everyone is trying to gauge what would be next. Because soon after he took charge, there's been a flurry of announcements, and not a day goes without a statement or another. And everybody is trying to sort of grapple with what the statement means, what would it mean for their country, what would it mean for their industry, local industry, and if they are exporting there. So I think markets are also trying to grapple with this new reality which is there in the world. And his announcements have created some bit of uncertainty. And there is also this uncertainty about what is coming next. So everybody is being very cautious. And in between all this, you had China come out with their AI thing, DeepSeek. Yeah. That has sort of changed a lot of situation for US tech companies. So I think we are living in that world where uncertainty really sort of is at the top of mind. It's become a norm, almost. It's the new normal. दीपशिका जी, अगर हम देखें कि ट्रंप ने 20 को जब शपथ ग्रहण की, उससे पहले जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, और आने के बाद भी उन्होंने जो टैरिफ को लेके जिस तरह के सारे देशों पे टैरिफ को में बढ़ोतरी की, और लेकिन उसके बाद फिर वो उसको रोका भी गया पूरे प्रोसेस को, और अब टैरिफ को काफी रैशनलाइज करने की बात है, कोई एक तरफा नहीं है, और भारत को खासतौर से अभी कोई बहुत बड़ा उस तरह का खतरा टैरिफ के फ्रंट पे नहीं नजर आ रहा है। बावजूद इसके शेयर बाजार लगातार ही बहुत ही नीचे की तरफ ही मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? अमरीश जी, अगर आप टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट्स देखें और जिस तरह का डील भारत के साथ एक जो लिमिटेड बायलैटरल ट्रेड डील एग्रीमेंट की हम बातचीत कर रहे हैं जो अप्रैल तक आएगा, उन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है कि अप्रैल तक आपको विभिन्न क्षेत्रों में जो टैरिफ्स लगाने हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उनको आप तय कीजिए। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि भारत से निर्यात होते हैं, जो गुड्स निर्यात किए जाते हैं, उनके साथ क्या उनका ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि एक तरफ तो ये एग्रीमेंट है और दूसरी तरफ जो वो वक्तव्य दिए जा रहे हैं विभिन्न, अगर आप देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रधानमंत्री और ट्रंप की मीटिंग के बाद थी, उसमें भी उन्होंने अंत में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो टैरिफ तो हम लगाएंगे, टैरिफ ज्यादा है, और इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं। आज जो जैसे अब टैरिफ की घोषणा की गई है कि फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स और इन क्षेत्रों में हम लगाएंगे, तो हमारी जो कंपनी हैं जो निर्यात कर रही है वहां पर, तो एक तरह का ये अनसर्टनिटी बना हुआ है कि भारत को ये कंपनी, भारत के ऊपर इसका कितना असर होगा, और जो ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं उसके साथ में ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं इनकी किस तरह से प्ले आउट करेंगे। तो यही वजह है कि ये बहुत अनिश्चितता सी जो बनी हुई है लोगों के मन में, इसने खास तौर से बहुत ही अनसर्टनिटी क्रिएट कर दी है। तो ये तो अभी लगता है फिर ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक जैसे आपने कहा अप्रैल तक, अभी मार्च अप्रैल, जब तक चीजें शेप नहीं लेती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक कि ये ट्रेड डील पे कुछ क्या शेप लेती है, ये ट्रेड डील नेगोशिएशंस कहाँ जाते हैं, और इनके जो रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, इनका क्या असर हमारे देश की कंपनियों को हो रहा है जो वहां निर्यात करती है। अब हम यहाँ से फार्मास्यूटिकल जो है काफी हद तक निर्यात होता है।
अब टेक कंपनीज में भी अगर कुछ है, उनके ऊपर कुछ आ रहा है, तो सबको ये अनिश्चितता से घिर गया है. Deepshika, if I may say, when you talk about reciprocity in tariff, then is it just tariff, or is it just a sign of supremacy, trying to show off power? Has it become a symbol of power, showing that we will put tariffs on you, and when this kind of a thing happens, is it actually does it hurt the economy, or is it a power game? इसके साथ मैं दीपशिखा जी और जोड़ना चाहूंगा अपना सवाल भी कि जो WTO में सहमति है टैरिफ्स को लेके, ट्रेड को लेके, अलग अलग जो मेंबर्स देश हैं उनमें, क्या उनको भी वायलेट करके ट्रंप इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, दो चीजें हैं. एक तो अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिक्स जो है, इफ आई कुड जस्ट ब्रिंग दिस, there is a larger geopolitics at play, definitely. And if you remember, Trump's campaign was, making America great again, yes. The MAGA campaign. Yes, MAGA. So he definitely wants to ensure that US remains at that high table and at the top of the high table. Which it continues to be, but there are other important powers also in the play. So I think he's trying to do that, definitely. But I think he's also trying to address his own constituency by saying, okay, I'm going to cut down imports, or, I'm trying to get jobs for you here. So I'm going to impose tariff on these people who import, because we don't impose high tariffs on who export to US, and so we will, impose high tariffs on them. So while we can debate over whether this strategy is going to, how it's going to play out, whether it's actually going to benefit the American citizens or not, that's a different matter altogether. And yes. Coming to you, Amrish ji. WTO के तहत अगर आप देखें कि पिछले बार भी जो है देश जब इन्होंने लगाए थे टैरिफ, तो WTO में चैलेंज किए गए थे. पर समस्या ये है कि WTO में जो स्थिति है, आपका जो उनका मैकेनिज्म्स है इन सब कंप्लेंट्स को डील करने का, वो इतना वीकन हो गया है अब. और दूसरा चीज है कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर ट्रम्प जो है उतना विश्वास नहीं रखते हैं. अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया. तो ये थोड़ा वीकनिंग हो गई है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका. तो ये वो यूनिलैटरल लेवल पे किए जा रहे हैं. तो अब इसमें ये चिंता है सबकी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन था, जिसके तहत पूरे विश्व की बहुत सारे देश आगे आए, उन्होंने काम किया कि दुनिया की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है मजबूती लाई जा सके, उसकी तरफ जो है ये कदम हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. डी ग्लोबलाइजेशन के तहत हम जा रहे हैं. जी, और खासतौर से EU से भी जिस तरह का वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने ही संकट है. पूरा मतलब जो कहना चाहिए कि अफरा तफरी सी मची हुई है पूरे देश में और जियोपॉलिटिकल लेवल पे और हर लेवल पर. जी, in the same breath I would say one wonders where US would go, or where US would be if it didn't accept a pharmaceutical import from talking from their perspective from India, because I think 2/3 of the medicines, I believe, coming to the US are from India, and also the IT industry, they're so much dependent on the IT resource from India, right? So he's imposing, he is actually creating pressure, he's building pressure on countries that you also need to cut down tariffs, you need to open your markets more. Right. I think that's a strategy that he's adopted. तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर भारतीय निवेशकों की दृष्टि से हम देखें आज शेयर बाजार को, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह का इन्वेस्टमेंट के वो फैसले करें, किन सेक्टर्स में करें, या अभी इंतजार करें सही समय आने का? देखिए, अनिश्चितता तो बनी हुई है बाजार में, और आप देखें तो वैश्विक बाजार में भी वो अनिश्चितता बनी रहेगी कुछ समय तक. निवेशकों के लिए यही है कि जब थोड़ी गिरावट होती है, वो अपने जिन क्षेत्रों में करना चाहते हैं निवेश, वो क्षेत्र देख लें, उनकी कंपनियों को थोड़ा सा देख लें कि कौन स्ट्रांग कंपनीज हैं,
और अगर गिरे उनके साइकिल जो लेवल पे गिरते हैं उनके खरीदने के लेवल पे, तब घुसें वो बाजार में खरीदें। तो ये उथल पुथल तो बाजार में कुछ समय तक बनी रहेगी, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है जो हमारे देश के लिए हमारी सरकार की तरफ से उस पर काफी एम्फेसिस है, तो उस क्षेत्र की जो कंपनीज है जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है बेहतर करें। तो जो जहां पे थोड़ा सेंसिटिविटी लग रही है, जो क्षेत्र जहां पे एक्सपोजर ज्यादा है यूएस का और ग्लोबली, उन क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान से निवेश करें। और चलते हैं रुपए का हाल जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आज विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहा। इस बीच 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 107.22 पर था। दीपशिखा जी, आज तो हमारे पास जो रुपए वर्सेस डॉलर की फिगर्स नहीं है, बट जिस तरह से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, या जैसे दूसरी शब्दों में हम कहें डॉलर जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर खासतौर से ट्रेड की दृष्टि से अगर हम देखें तो किस तरह का असर आपको दिखाई देता है? देखिए, रुपए में जो गिरावट है, और अगर आप बाकी आपने खुद ही कहा कि डॉलर इंडेक्स के तहत यूएस डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, तो अगर रुपए का परफॉर्मेंस देखें तो बाकी जो करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में रुपया जो है उतना नहीं गिरा है, लेकिन रुपया गिर रहा है। तो निर्यात जो क्षेत्र है उसमें खासतौर से निर्यात क्षेत्र में जो यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उत्पादन करते हैं, उस क्षेत्र को फायदा होता है क्योंकि उनको ज्यादा उसका रियलाइजेशन मिलता है। लेकिन वो निर्यात क्षेत्र जिनको जो आयात भी करते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले, तो उनको उतना फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि वो आयात करते हैं और निर्यात भी करते हैं, तो उनका निगेट हो जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर निर्यात ज्यादा हो रहा है उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन जो रिजर्व बैंक की हाल के समय में जिस तरह की पॉलिसी अब है कि वो इंटरफियर नहीं करना चाह रहे और रुपए को गिरने दे रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या तर्क दिखाई देता है? देखिए, रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक, और ये बहुत बार रिजर्व बैंक के गवर्नर कह चुके हैं कि हम जो है अगर वॉलेटिलिटी है करेंसी मार्केट में तो हम वॉलेटिलिटी को नहीं रहने देते, उसको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन हम करेंसी मार्केट में ऐसे इंटरफियर नहीं करते हैं मूवमेंट को लेकर के। तो ऐसा तो गवर्नर ने पहले कहा है कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है कि हम इंटरफियर नहीं करें, हम वॉलेटिलिटी पे बराबर नजर रख रहे हैं। All right. Let's take a look at the India-Argentina agreement. Well, India and Argentina today signed a memorandum of understanding, MOU, to strengthen cooperation in lithium exploration and mining. The agreement was signed during a meeting held by Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy with Governor of Catamarca, Argentina, Raul Alejandro Jalil in New Delhi today. During the meeting, the discussions focused on expanding cooperation in the mining sector, particularly in lithium exploration and investment opportunities, and senior officials from both sides engaged in discussions on policy framework, regulatory aspects, and sustainable mining practices to ensure a mutually beneficial partnership. And now let's talk about the RBI Data App. जी भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा है कि यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का विवरण भी शामिल है। इसमें एक लोकप्रिय रिपोर्ट खंड भी है जिसमें बार बार देखी जाने वाली रिपोर्टों की श्रृंखला शामिल है। ऐप के जरिए
उपयोगकर्ता अपने आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। दीपशिखा जी, कितना महत्वपूर्ण है आरबीआई का ये कदम, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामान्य तौर पर लोगों को बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल पाता और उन्हें ढूंढना पड़ता है अलग अलग स्रोतों से। तो एक ही जगह पर जब सारा डेटा उपलब्ध होगा तो जो एंड यूजर्स है या जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। एकदम सही कहा आपने अमरीश जी, क्योंकि खास तौर से और अगर कंपनियां भी हैं जैसे, तो वो अक्सर डेटा कहाँ से मिले, क्योंकि आरबीआई का अगर आप देखें आरबीआई की वेबसाइट, वो बहुत सारे रिपोर्ट्स भी लेकर आते हैं। कई बार ढूंढना मुश्किल है, नहीं मिल रहा है, तो अब आरबीआई इसको एक्सेसिबल बना रहा है ऐप पर, आसान तरीके से जिसको चाहिए, जो ढूंढना चाहता है उसको एक्सेस कर ले। तो कंपनीज, जो भी यूजर्स हैं, कंपनीज हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पे भी कोई अगर उसको करना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। And just to add to what you read, Amrish ji, additionally, users will also be able to access data about South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, as we call it, SAARC countries, through the SAARC Finance link in the app. RBI has said that the app aims to serve the researchers, students, and general public, and very important and very good that it's available for both iOS and Android users, and also allows users to provide feedback to improve its functionality. All right, a step forward in digitized India. जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.6% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% से अधिक बढ़ा। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 0.2% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई लगभग 0.3% और हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग 0.14% गिरा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान गिरावट दिखाई दी। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.9%, जर्मनी के डेक्स में 0.8% और लंदन के फुटसी में 0.4% से अधिक की गिरावट चल रही थी। दीपशिखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यूरोप के शेयर बाजारों में अक्रॉस एक गिरावट का दौर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, एशियाई बाजार और यूरोपीय बाजार में फर्क जो कह रहे हैं वो इसलिए है, यूरोप जो है ट्रम्प का जो अनसर्टनिटी जिसकी हम बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित हुआ है। और एशियाई बाजारों में अगर आप देखें तो चाइना में खासतौर से टेक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट आया है निवेशकों का। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने, उनका जो इंटरेस्ट है वो सडनली, क्योंकि जब एआई पे चाइना में उन्होंने इतने कम कीमत में ये डेवलप कर लिया है, तो टेक कंपनीज में खास तौर से निवेशकों का इंटरेस्ट है। तो ये जो है फर्क अचानक से वो नजर आने लगा है। Where is China otherwise in the whole picture, in the global milieu, now that there is a threat to, we were thinking of a multipolar world, suddenly it's become a unipolar, it looks like, with, where is China in the whole scenario? Where does it stand? See, China over the past few years, if you see, it has its stature has risen as an economy, as also a global power. So, and its engagement with various countries at different levels, it has in a very focused way, been doing that. So it is definitely there in the whole of geopolitics. How it shapes up in next few years, I think we'll have to see, especially because of the changes that are sort of happening around, with US seeing a change in the government and the other changes that are there. Also the fact that Chinese economy is not doing that well. So how
it sort of plays out for China as a a major player on the high table, that is something we need to really watch out for. And the fact that today we had an agreement with Argentina, yesterday we had an agreement with Qatar. With this kind of a geopolitical situation, are we trying to secure ourselves with kind of formal, informal tie-ups with other countries so that not putting all eggs in one basket? I think what India is doing is India is trying to ensure that its supplies, its critical supplies, do not get impacted. Right. And also its own companies are able to find markets. Lithium is a very important mineral, and we need it if we have to grow our, especially if we are looking at net zero and we are looking at a battery ecosystem and so on and so forth. Semiconductors, yes. So I think the idea is to ensure our supplies are, we have supply agreements. And also if you look at, we are also ensuring that our, manufacturers, our service providers find markets, different markets globally. So how can that be made easier? I think that is the whole idea. Right. Look at the U.S. markets now. U.S. stocks managed to end in positive territory yesterday after gyrating between gains and losses for much of the session. The S&P 500 rose 0.24%, while Nasdaq Composite and the Dow Jones Industrial Average ended nearly unchanged. And moving on to Mexico. Well, Mexico has relaunched its Made in Mexico brand campaign in response to U.S. President Donald Trump's announcement of a 25% tariff on Mexican imports. The campaign is aimed at boosting national production of Mexico and mitigating the economic impact of tariffs. The campaign was unveiled by Mexican Economy Minister Marcelo Ebrard recently after the brand and its usage guidelines were published in the government Gazette. And moving on, let's take a look at the oil prices. Well, oil prices extended gains today amid concerns of supply disruptions in Russia and the US, while the traders also awaited clarity on sanctions following attempts by the US to negotiate a deal to end war between Russia and Ukraine. Brent crude was trading over 0.7% up at $76.42 per barrel, and WTI crude gained over 0.8% to trade at around $72.45 per barrel when reports last came in. और चलते हैं सराफा बाजार का हाल भी जान लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.25% बढ़कर 86,530 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.2% बढ़कर 97,530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.24% बढ़कर 86,323 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति किए जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.16% बढ़कर 97,002 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। दीपशिखा जी, आप क्या कहेंगी? सोना ऑल टाइम हाई है और बढ़ता ही जा रहा है, तो कहाँ जाके बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। सोना जो है, अनिश्चितता रहती है तो सोने का भाव बढ़ना ही है। और दूसरा चीज है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, बहुत सारे सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। तो अनिश्चितता का दौर है, तो सोना जो है छलांगे लगा रहा है। तो आपको इन्वेस्टर्स के को लेके क्या कहेंगी? उनको कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, तो स्टॉक मार्केट की जगह सोने में ही निवेश करें तो बेहतर होगा। देखिए, सोने ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है किसी को, हिस्टोरिकली अगर आप देखें जी। तो एंड इंडियाज हंगर फॉर गोल्ड unending and huge, come what may. There's a marriage season, festive season, and people always go for gold. I think we're the world's largest consumer of gold. One of them, yes, definitely. Apparently we have the highest stock of gold if you look at the household gold stocks. लेकिन जैसा आपने कहा दीपशिखा जी कि बहुत सारे देश जो है वो काफी खरीदारी कर रहे हैं सोने की, जो अनसर्टेनिटी है उसके बीच में, तो क्या भारत की भी इस तरह की कोई योजना है कि और स्टॉक करना है? देखिए, रिजर्व बैंक
समय समय पे खरीदता रहता जी है। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। दीपशिखा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And friends, before we wind up, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex slips 28 points. Nifty closes below 22,940. Major Asian indices close mixed. European indices trade in negative territory, and global crude oil prices register gain. Brent crude trades at $76.42 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Ambish Saxena signing off. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.